Hello students, in previous part we have studied about the immunity disorder produced due to the lack of immunity and different types of immunity system can be consistent in human being. In this part we will discuss on the disease called AIDS. AIDS. What is AIDS? AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. It is a very fatal disease, dangerous disease. There is no treatment can be occurred. There is no treatment or present of the disease. Only we can control, but can't fully uproot it. AIDS, which is called acquired immunodeficiency syndrome. This disease is caused by a virus that is HIV. यानी ये डिजीज एक वायरस के द्वारा होता है. वायरस कौन सा? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी virus. Firstly, this disease was observed in America in 1981. It can be seen in the homosexual, means same sexual organs के द्वारा, same human being जो same sex के हैं उनके द्वारा ये disease produce है. 1981 के अंदर firstly it was observed in America. In India, it is highlighted in 1986. And in the International Committee of Viral Nomenclature, it was given 1986 के अंदर ही. क्यों 1986 में क्यों? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर उसने इस वायरस का नाम दिया था HIV. In 1986 इंटरनेशनल कमेटी in viral nomenclature, it was proposed that this disease is caused by a virus called HIV. HIV virus is a retrovirus. HIV virus होता है एक retrovirus. The retrovirus, what do you mean by retroviruses? The viruses in which genetic material is RNA. वो वायरस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस. दिस वायरस इज रेट्रोवायरस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द HIV virus. There is no structure given in your NCERT book, so you have to draw the clear structure of HIV virus. How is the structure of HIV virus contained? HIV virus के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेंट होता है. ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टू फिलामेंट के अंदर दैट इज प्रेजेंट इन कोर. टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए फिलामेंट. क्लियर? इनके बाहर एनवेलप होता है प्रोटीन का बना हुआ. वो प्रोटीन की लेयर दो प्रकार की होती है, एक P24 और एक P17. P24 जो कि कोर यानी न्यूक्लियस के आसपास जो कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड को कवर कर रखती है, दैट इज द P24. प्लाज्मिड बोल सकते हैं प्रोटीन 24. एंड अदर वन इज द आउटर लेयर, आउटर कमिंग लेयर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट सेल. जैसे कि होस्ट सेल में HIV वायरस एंट्री करता है, उस बॉडी की सेल जो टी हेल्पर सेल थी उनको डिकम्पोज कर देता है, उनकी संख्या कम कर देता है, जो कि पर क्यूबिक मिलीमीटर में टी हेल्पर सेल की 200 ml के आसपास उनकी नंबर होनी चाहिए. लेकिन ये वायरस जैसे एंट्री करता है उनकी संख्या डिक्रीज कर देता है लेस देन 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर में. There is two coated of protein layer. One is around the core that is made up of P24 plasmid, and other one is outer that is P17 plasmid 17. And there are two glycoprotein layers. Bilayer जो होते हैं फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, दो इसमें प्रोटीन की और दो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है. दो फॉस्फोलिपिड लेयर कौन सी? ग्लाइकोप्रोटीन जिसको बोलते हैं. फॉस्फोलिपिड लेयर इट मींस ग्लाइकोप्रोटीन. GP ग्लाइकोप्रोटीन की दो लेयर होती हैं, एक पेडिकल और एक स्पाइक्स. स्पाइक मतलब इस प्रकार के स्पाइक्स जो होती है. इस स्पाइक्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कितने होते हैं? 120
और जो इसका पेडिकल जो मतलब लास्ट बेस है, जहां पर बेस पे कितना है GP41, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन पेडिकल जो बेस पे है, स्पाइक्स का बेस जो है दैट इज द पेडिकल। वहां पर फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड है किस्म से फॉस्फोलिपिड जो लेयर है, यदि पेडिकल पे चेक करते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन कितना 41 होता है, और स्पाइक्स पे चेक करते हैं तो 120 के आसपास होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV virus. Then you have to draw the structure as well as to define. HIV virus is retrovirus because its genetic material is RNA. In the core, there are two filaments of RNA present and two protein layer covering the RNA structure. One is in the core that is made up of plasmid protein 24 that is called plasmid, and outer layer which is also made up of protein that is called P17. And there are also two phosphodiester phospholipid layer which is made up of glycoprotein. One is 120 and other one is 41. 120 जो होती है वो स्पाइक्स की होती हैं, स्पाइक्स में जो आगे चिपक जाती है जिसके साथ से, और स्पाइक्स का जो लास्ट पेडिकल बेस जो है उसको पेडिकल बोलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन पेडिकल जो है वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन GP कितना था 41 कंटेन होता है। किस कारण से फैलता है, उसके बाद द मोड ऑफ ट्रांसमिशन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू माय स्पीकिंग स्किल। Sexual contact with infected person, sexual contact with infected person by transfusion of contaminated blood or blood product, यानी कोई सेल ले ले या ब्लड ले लें तो कंटेमिनेट, यदि कोई व्यक्ति पहले अफेक्टेड उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दे तो भी हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू, यदि मदर एड्स से पहले इन्फेक्टेड है तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, इन्फेंट बेबी है वॉर्म के अंदर डेवलप कर रहा है तो उसको भी श्योर एंड सर्टेन। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रो प्लेसेंटा बाय शेयरिंग, कोई ड्रग्स एडिक्टेड हैं तो व्यक्ति इकट्ठे ड्रग्स लेते हैं, सीरीज वगैरह लगाते हैं तो ड्रग्स एक दूसरे के साथ एक ही सीरीज का यूज कर लेते हैं। By sharing infected needle as in the case of intravenous drug, इंट्रावेनस यानी वेन के अंदर ड्रग्स लेते हैं तो सीरीज के द्वारा लेते हैं। इंट्रावेनस ड्रग abusers children born in HIV infected mother. This is the mode of transmission. How the action of the AIDS can be take place inside the human body. If virus कौन सा HIV, if any HIV virus enters in the human body, it affects the immune system. Firstly, immune system को जाके affect करता है। इम्यून सिस्टम में अफेक्ट होने के कारण से बॉडी की इम्यूनिटी जो पावर है वो लेस होना स्टार्ट हो जाती है, और किसको जाके ये जो लिम्फोसाइट सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल हैं, और टी में भी किसको, जो टी हेल्पर सेल की जो संख्या है, नंबर जो होता है उसको डिक्रीज कर देता है। ये कितनी होती है 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर इसके साथ साथ इनकी संख्या होती है टी हेल्पर सेल की, और जैसे ही HIV वायरस इसमें ट्री करता है इनकी संख्या डिक्रीज कर देता है, और इनकी संख्या डिक्रीज हो जाएगी तो इम्यूनिटी पावर लेस हो जाएगी। जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की डिसऑर्डर प्रोड्यूस है यानी एड्स प्रोड्यूस हो जाता है तो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर लेस हो जाती है, थोड़े से अदर वायरस से, बैक्टीरिया से या किसी भी अदर पैथोजन के कांटेक्ट में आता है, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेनी टाइप ऑफ डिजीज, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मेनी डिजीज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब वो बहुत से प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गए। तो इस प्रकार this time the immunity power becomes less and the person is not able to not able to fight against to the disease causing germs. Clear? This is action taken by the HIV virus when enter in the human body. The next one, how we can detect the person is suffering from AIDS? टेस्ट होता है, एक इसका टेस्ट होता है जिसका नाम होता है इलिसा, ILISA, और एक होता है साउथर्न ब्लॉटिंग,
साउथर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस के द्वारा इसका टेस्ट चेक किया जा सकता है। साउथर्न ब्लॉटिंग। दूसरा होता है इलिशा, एंजाइम एंटीबॉडी का लिंकेज होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो sorbent assay, a test by which we can detect the person is suffering from AIDS, that is ELISA. What is ELISA? ELISA test is based on antigen antibody in the body. बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी के संयोग में मतलब कॉगुलेशन करने का से जो डिजीज का होता है। तो दिस टेस्ट ELISA, what is the full form of ELISA? Enzyme linked immunosorbent assay. And another test which is by which we can detect the person is suffering from AIDS, that is southern blotting. There is no treatment, there is no fully treatment of this disease. We can only control the virus infection by the AZT. Treatment इसका क्या हुआ? AZT, azido thymidine, DDI, dideoxy ionosine टेबलेट नहीं, DDC dideoxy cytodine, dideoxy cytodine. These are the medicines by to give the person suffering from AIDS. This disease is not fully treatment fully cured, but the infection, but the effect of reaction of the virus can be controlled on some basis. कुछ बेस तक इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो what is AIDS? When was it detected in the first time and where? America in 1981, in India के अंदर 1986 के अंदर इसका जो वायरस बताया कि ये एड्स इस वायरस के कारण से HIV जो नेम रखा गया वो इंटरनेशनल वायरल कम्युनिटी नोमेनक्लेचर के द्वारा रखा गया 1986 के अंदर कि दिस इज द HIV वायरस. व्हाट इज HIV? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. This virus is a retrovirus. What is the structure of the virus? And you have to explain the structure of the virus. वायरस जो था पहली बात तो रेट्रोवायरस को बिकॉज इट हैज जेनेटिक मटेरियल RNA. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट कंटेंट होते हैं. स्ट्रक्चर ये था. उसके बाद इसका किस प्रकार से एक्शन होता है बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर एक्शन होने के कारण से फिर इसका ट्रीटमेंट क्या कोई फुली ट्रीटमेंट है. टेस्ट पहले तो टेस्ट इसका कौन सा? दो टेस्ट होते हैं. साउदर्न ब्लॉटिंग के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है और सेकंड वन इज ELISA test. What is ELISA? Enzyme linked immunosorbent assay. एंटीजन एंटीबॉडी के कोगुलेशन के कारण से इस डिजीज का मतलब डिटेक्शन किया जाता है. एंड ट्रीटमेंट देयर इज नो fully treatment of this disease. It is a fatal disease. The virus action can be controlled by some medicines such as like as AZT, azithromycin, DDI, dideoxy ionosine, DDC, dideoxy cytodines. This स्टार्डोविन, एक स्टार्डोविन भी होता है जिसके द्वारा इसको वायरस के कंट्रोल, वायरस जो इफेक्ट है, वायरस जो रिएक्शन करता है उसके रिएक्शन को, उनके इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है. You have to only this disease. What is disease? Which type of disease? What is the structure of disease? What is the action of the disease in the body and how it can be spread? The mode of transmission we have already written and how we can prevent mode of the transmission का opposition कर दें. That is the prevention method. और उसके बाद treatment. There is no full treatment, but we can control the virus effect by these medicines. Name the test by which we can detect the AIDS. ELISA test and Southern blotting. Clear?